अच्छा, कितना लोगों का नहीं बना बताओ, कितना लोगों का नहीं बना? স্যার আমার হয়নি। তোমার হয়নি? হুম। আচ্ছা, বাকিদের? স্যার আমারও হয়নি। কারণ কি প্রবলেম হচ্ছে একটু বলবে আমাকে, যে কোন জায়গাটা প্রবলেম ফেস করলে এটা বানাতে গিয়ে? একটু বলো এটা আমাকে, তাহলে সুবিধা হবে। বলো, একটু বলো না। নিধির ইনিশিয়াল পয়েন্ট বলতে ইনিশিয়াল মানে 7 হচ্ছে নম্বরে যে পজিশনটা স্টার্টিং পজিশন, বুঝেছো? শুরুতে যে পজিশনটা থাকে সেটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল পজিশন। মানে এটাকে আমি লিখে দিতে পারি, ইনিশিয়াল পজিশন মানে স্টার্টিং এ যে পজিশনটা থাকে, ফার্স্ট যে পজিশনটা হয় বিফোর শিফটিং, বিফোর মুভিং, বিফোর ইন্টারচেঞ্জ, সেইটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল পজিশন। আচ্ছা স্যার। আর ফাইনাল পজিশনটা হচ্ছে লাস্টের যে পজিশনটা হয় সেটাকে বলা হয়। আর কোনো ডাউট বলো, মানে বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে? এবারে আমরা এটা একটু সলভ করি, জায়গা খুবই কম। In a row of children standing with their face towards the north, Nidhi is 7th from the left. ये माঝখানটা ড্রয়িং বানাচ্ছি, তাহলে लेफ्ट साइड থেকে निधिर जो पोजीशन, निधि का पोजीशन बता दिया गया 7th from the left, दैट मींस इसका लेफ्ट में कितना लोग आएगा? 6 लोग आएगा। अच्छा, when Rajan is 4th from the right, राजन का जो पोजीशंस बता दिया गया राइट साइड से कितना पोजीशंस है? 4th from the right, तो राइट हैंड से 4th, दैट मींस राजन का राइट में कितना लोग होगा? 3 लोग होगा। when Nidhi is moved, তুই ক্যামেরাগুলো অন করিস না, অসুবিধা হয় খুব বারবার। when Nidhi is moved forward 2 positions to the right, Nidhi is moved forward 2 positions right, তাহলে this one is my left side and this one is the right side of the row person, तो forward to the right, तो right की तरफ उसको मूव कर दिया, 1 position, 2nd position, तो this one is the Nidhi's new position, this one is marked Nidhi's dash, ठीक है? तो এই যে position, this one is called initial position and this position is called final position. আমি যেরকম যতটা লিখছি তোমরা ততটাই ড্রয়িং বানাবে খাতায়, কোনো স্মার্ট ওয়ার্ক করবে না। নেক্সট, রাজন is moved 3 positions ahead to the left, রাজনকে মুভ 3টে পজিশন মুভ করা, তাহলে ফার্স্ট পজিশন, সেকেন্ড পজিশন, থার্ড পজিশন, দিস ওয়ান ইজ রাজনস নিউ পজিশন and there are 5 children in between them, এই দুজনের মাঝখানে এখন 5 चिल्ड्रन আছে, 5 लिखे हो गया। अभी हम इसका काउंटिंग करेंगे, डायग्राम जो कंडीशंस दिया था उस हिसाब से कंप्लीट हो गया। काउंटिंग करो, देखो काउंटिंग देखो, 6 प्लस दिस वन 7 प्लस दिस वन 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14 15 16 17 18 plus 3 21, so 21 is the maximum children are there in the row.
ঠিক আছে, বলো কোনো ডাউট, কোনো জায়গা বুঝতে অসুবিধা হলে বলো, কোন জায়গাটা প্রবলেম আমি বলবো, আবার ডিসকাস করব, বলো। कोई डाउट? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2, what is the Nidhi's initial positions from the right end? Initial positions from the right end चेक करो, initial positions from the right end मतलब क्या होगा, तो कौन सा वाला इनिशियल है, निधि इनिशियल, दिस वन इज द निधि's initial position from the right end, तो राइट एंड से काउंट कर दो, देखो 3 + 1 4 + 1 5 6 7 7 + 5 12 13 14 15, तो 15 positions from the right, ठीक है। And next one, what is the Rajan's final positions from the left? Rajan's final positions from the left मतलब this one, Rajan dash जो है उसको लेफ्ट साइड से काउंट कर दो, 6 + 1 7 8 9 14 15, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। बोलो कोई डाउट, पूछो 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 पूछो, किसी का कोई प्रॉब्लम? हेलो, না স্যার। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो इन क्लास रमेश इज 5th पोजीशंस फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो टॉप से रमेश का पोजीशन हमने पहले ड्रॉ किया। 5th पोजीशन से दैट मींस रमेश के ऊपर कितना लोग आएगा, 4 लोग आएगा। पहला वाला कंडीशंस हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट बोला पोजीशंस। अच्छा, अजय इज 8 फ्रॉम द बॉटम। अजय का जो पोजीशंस बोला नीचे से कितना है, 8 है। दैट मींस अजय के नीचे कितना लोग आएगा, 7 लोग आएगा। हो गया। If the position of Suresh is 6th after Ramesh, देखो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखो। If position of Suresh is 6th after Ramesh, position of Suresh is 6th after Ramesh, तो रमेश के बाद जो सुरेश का पोजीशन आएगा वो 6 पोजीशंस में आएगा। मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे ना, आर के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 पोजीशन पे आएगा कौन, सुरेश। तो कोई भी एक पर्सन का रेस्पेक्ट में कोई एक दूसरे पर्सन का जब पोजीशंस दिया जाता है तब क्या होता है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन पोजीशन -1 दैट मींस 5 आता है। अब यहाँ पर काउंट करोगे तो आर और एस के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है, 5 है। क्यों ना, रमेश का रेस्पेक्ट में सुरेश का जो पोजीशन दिया था 6 दिया, इसलिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, एंड ही इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ रमेश एंड अजय, एंड सुरेश होगा रमेश एंड अजय का एग्जैक्टली मिडिल में। तो क्या होगा इसमें, द मिडिल होगा तो मतलब यहाँ पर रमेश और सुरेश के बीच में 5 लोग हैं, तो ए वाला गैप में भी 5 लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 पर्सन्स आ जाएगा। अभी टोटल काउंट कर दो, तो यहाँ पर 4 लोग हैं प्लस रमेश है, रमेश के बाद अगेन 5 लोग हैं, देन सुरेश है, सुरेश के बाद अगेन 5 लोग हैं, देन ए अजय है, देन 7 लोग हैं। काउंट कर दो कितना वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया बताओ। 24।
24 आया না 23 आया? কাউন্ট করো, বল কত এসছে, কি হলো, 24 কত এসছে? 24 24 ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ। So in a certain class, positions of Janus from the top is 16th and 37th from the bottom. अच्छा, तो ये वाला तो इजी होगा, दोनों ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगा वहां से -1 कर दो, तो यहाँ पर 3 आएगा तो 53 -1 इक्वल्स टू 52 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आया सबका, इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सर जरा प्रीवियस क्वेश्चन जरा दिखाएंगे सर एक बार, स्क्रीनशॉट लेना था सर, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन जरा दिखाएंगे, जरा स्क्रीनशॉट लेना भूल गए। एक मिनट सर, हो गया सर।
तो in a row of boys Keshav who is 10 from the left, यहाँ पर number of persons 9, and Vijay who is 9 from the right, तो यहाँ पर 8 लोग आएगा। ठीक है, क्या बोला, इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो केशव चला जाएगा विजय की जगह, विजय आ जाएगा केशव की जगह। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स देखो, बी लिख दिया, यहाँ पर के को लिख दिया। बी का राइट में कितना लोग था, 8 लोग, यहाँ पर भी 8 लोग आएगा। यहाँ पर के का लेफ्ट में कितना लोग था, 9 लोग आएगा। सिर्फ के और बी के बीच में पोजीशन का चेंजेस होगा और कोई जगह चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट ना बोला केशव comes to the 15 positions from the left, after interchange होने के बाद केशव का जो अभी वाला पोजीशन है 15 from the left side, दैट मींस ये 15 पोजीशन जो बोला गया, दैट मींस इसके अंदर ये लोग भी इंक्लूडेड है। तो हम 15 को काउंट कर लेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ये लोगों को अलग से काउंट करने का दरकार नहीं पड़ेगा। फाइन। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी मैक्सिमम बॉयज आर देयर इन द रो। अच्छा ओके, तो 15 एंड प्लस 8, तो 15 और 8 मतलब लेफ्ट से लेके केशव तक का पोजीशंस 15 हो गया। उसके बाद राइट में कितना लोग है, 8 लोग है, तो 15 प्लस 8 को 23 आ जाएगा आंसर इसका। वेरी गुड, सो आंसर राइट इज नेक्स्ट वन। देखो, तो इन ए रो ऑफ गर्ल्स and Rekha who is 7 from the left and Madhu who is 10th from the right, 10th from the right। अच्छा ओके, इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो यहाँ पर मधु आ जाएगा, यहाँ पर रेखा आ जाएगा, यहाँ पर इसका पोजीशन 10 था, इसका 7 था, लिख दिया। तो रेखा कम्स टू द 12 पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट, तो 12 प्लस 9 आ जाएगा, तो 21। ठीक,
Next one, very good.
tail children are standing in a row facing the same direction. Okay. Abhijit, who is 7th from the left? Abhijit, who is 7th from the left? Abhijit, who is 7th from the left and to the immediate right of Sushant. If Sushant यहाँ पर आ जाएगा. Who is immediate right of Sushant? Abhijit is immediate right of Sushant. ठीक ना? तो Abhijit is immediate right of Sushant का मतलब क्या होगा? ना सुशांत अभिजीत ऑलरेडी था तो उसका लेफ्ट में सुशांत आ जाएगा. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्या बोला? From left immediate right of Sushant who is fifth from the right end. अच्छा सुशांत who is fifth from the right end. तो right end से बोला गया सुशांत का जो पोजीशन होगा fifth पोजीशन होगा. सुशांत is third to the right of Rupin. सुशांत is third to the right of Rupin. that means Rupin के बाद first second third पोजीशन में सुशांत आएगा. ठीक तो रुपिन के बाद थर्ड पोजीशन में सुशांत आएगा तो ऑटोमेटिकली हम सुशांत का लेफ्ट में दो लोग छोड़ के रुपिन को लिख सकते हैं. यहाँ पर हो गया. तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग बिटवीन अभिजीत एंड रुपिन? अभिजीत एंड रुपिन के बीच में कितना स्टूडेंट है? 3 लोग हैं. 1 2 एंड एस. तो 1 2 3 3 लोग आएगा इसमें. ठीक है, बना तो घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. रैंकिंग का क्वेश्चन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा सिटिंग अरेंजमेंट में. ज्यादातर यहाँ से कम क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, चलो थैंक यू. Thank you, sir.